So let's begin with a discussion of FLT 12, AIMT 3 on section. Starting with question number 45, let's go ahead with a selection of questions. Acha, before starting with the selection of questions, uh, a basic thing that I want to discuss, like what happens is, as of now, what we were focusing on is basically the arithmetic section. Generally, what we were selecting were basically from arithmetic section only. But as of now, since we are done with arithmetic, we are done with algebra, we are done with number system, we are done with advanced arithmetic, only geometry it's left. What I feel is that rather than focusing your selection of questions just on arithmetic, because at times we face some difficult questions which are from arithmetic section as compared to some easier questions which are from other sections like algebra or something like advanced arithmetic. So what we can do is ki from now onwards, rather than being focused only on arithmetic, we can just shift our focus to easier questions, be it from any of the topics, because किसी भी topic का easy questions अपन easily कर सकते हैं as compared to difficult question of arithmetic only. So let's make it open for all the sections, just restricting it to geometry, which we should not ideally attempt at this point of time. अपन क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि वो रिलेटिवली इजी है या डिफिकल्ट है, ठीक है, rather than getting it into the concept of arithmetic. Starting with that, question number 45. Let's start with the selection of question. Particularly for this mock, there were 5 questions as was being informed to me. There were 5 questions जहाँ पे data was missing. So for the current selection, we are just skipping those questions. बाद में देखेंगे in case अगर data available रहा या फिर data predictable रहा तो we'll go for those. Otherwise, we'll skip that. So for this particular question, data is missing. So you can put it part 3, which is not to be attempted. Something from a number system, but yes, still data is missing, so you could have skipped it. Question number 46, allegations and mixtures. Ideally, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 47, प्रोग्रेशन, बट इस चीज का मैंने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लिखवाया हुआ है, सो आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 48, इनइक्वालिटीज, एज ऑफ नाउ स्किप इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 49, समथिंग फ्रॉम टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो मेरे हिसाब से यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 50, फंक्शंस है, स्किपिंग इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 51, ज्योमेट्री है, स्किपिंग इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 52, SICI है, सो व्हाट आई फील इज कि यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट. इंस्टॉलमेंट्स है बट कर सकते थे, तो पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 53, आई गेस द डेटा इज मिसिंग, तो यू कुड हैव स्किप्ड इट. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 54, डोमेन एंड फंक्शन, स्किपिंग इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. आई एम नॉट श्योर, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डोमेन पता ही ना हो. जिनको डोमेन पता है उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बट फॉर अदर्स इट माइट बी अ डिफिकल्ट वन. स्किपिंग इट फॉर नाउ. क्वेश्चन नंबर 55, ज्योमेट्री है, स्किपिंग इट फॉर नाउ. पार्ट 3 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 56, समथिंग फ्रॉम परसेंटेजेस, आई गेस आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 57, ratios, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 58, quadratic equations. देखिए थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगता है whenever it's number of integral values, so my personal opinion, skip it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Otherwise अगर किसी को लगता है तो you could have attempted it, but yes, skipping it for now from my side. Question number 59, so स्किपिंग इट फॉर नाउ, नंबर सिस्टम का है. पार्ट 2 में डाल दीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथियर वन. राइट, कई बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया है. इस नॉट एक्जैक्टली दिस वन, बट इस टाइप के क्वेश्चन तो जनरली ये लेंथी जाता है. विल फिगर इट आउट, बट एज ऑफ नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 60, एवरेज से लग रहा है तो कुछ इजी ही होगा. होपफुली यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट. पार्ट 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 61, अगेन नंबर ऑफ इंटीग्रल, समथिंग फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम, स्किपिंग इट फॉर नाउ. पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 62, time and work, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए, but I guess there is some data missing in it, so part 3 में डाल दीजिए, data missing है. Question number 63 has to be this is skipping it for now because part 3 में डाल दीजिए because data is missing. Question number 64, search indices थोड़ा सा complicated हो जाता है in case अगर values कुछ ऐसी हो, so you could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 65, I guess something from equations, basically you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. And question number 66, SICI, you should have attempted it. Part 1 में. Just give me 1 minute for that. 65 में भी डेटा 65 में डेटा मिसिंग है. डेटा मिसिंग है, ठीक है, तो skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 66, part 1 में डाल दीजिए. That is from SICI. Just allow me 1 minute, please.
चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। बोलिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है? 46। 46। डाउट है किसी का? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, No, जिसका भी sir. देखिए देखिए क्या दे रखा है। वैसे 700 liter mixture of spirit and water which has 60% spirit in it. How many liters of another mixture with 75% spirit content must be added so that the spirit content in the resulting mixture will be more than 65 less than 70? क्वेश्चन रीड करते प्योर एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन रूल क्लियरली दिख रहा है। आपके पास 60 वाला अवेलेबल है, आपके पास 75 वाला अवेलेबल है। इसको कितना मिक्स करें कि 65 बन जाए? जल्दी से रेशियो बताएगा कोई? दिस वैल्यू इज 1:2, 5, 10, 10, दिस वैल्यू इज 5, दैट इज 2:2 2:1, और ये अपने पास 700 है, तो ये 350, 350। 350. ये मिनिमम था 65 बनाना, मैक्सिमम इसको 70 बनाना। अगर 70 बनाया तो ये 5, 5. ये 10, 5. 10. रेशियो 10. टर्न्स आउट टू 1:2। ये 1:2. 700 था तो ये 1400. 1400। मतलब मिनिमम 1400, मैक्सिमम 1400 और मिनिमम 3500 होना चाहिए। Yes. Yes, sir. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, 100% करेक्ट हो सकता था अगर आप उसको अटेम्प्ट करते तो। चले आगे। yes, Yes, sir. Yes, sir. Second of all, shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Next, please. Sir, 47, Najib dropped a bouncing ball from a height of X meter. Each time the ball, अच्छा बताने का है किसी को? No, No, sir. No, sir. Anyone? No, sir. नहीं। यस वापस से याद सॉरी। यस सर, एक बार ही प्लीज। इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लिखवाया हुआ है। हाइट Yes. ऑफ एक्स मीटर टचेस द ग्राउंड, बाउंसेस बाय 3/7 एंड ऊपर नीचे हो रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस इट कुड हैव ट्रैवल्ड कैन नॉट बी मोर देन 230 बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसने क्या किया है? एक्स बताना है, ठीक है। इसका जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो था एक्स 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। ये लिखवाया था मैम, याद है तो आपको? यस सर। ये हो गया 10/7, ये हो गया 4/7। 7 से 7 कट गया, ये 2, ये 5, 5 से 230 कट गया 46 में। x तो equal इसमें to ये एक्स क्या होता था? the height from which you are dropping it. The formula was h 1 plus r upon 1 minus r equal to total distance. ओके सर, थैंक यू सर। Clear है? यस सर। Shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Next, please. 49. 49th. बताने का टीएससी का क्वेश्चन है? no, sir. No, sir. नो सर। Anyone? No, sir. No, sir. Let's go ahead with the next one, please. 52. बताने का किसी को? No, sir. Installment का No, question है? sir. No, sir. No one? चलो, Yes, बढ़िया है। sir. No, sir. इसको बताने का है। सर मुझे सर सर इंस्टॉलमेंट पढ़ा ही नहीं है आपने अभी तक, ऐसे ऐसे ही कहाँ करवाया मैंने? अच्छा ओके सर ओके। नेक्स्ट प्लीज। 56. टीएसके वाले में डाउट है। एनीथिंग बिफोर 50, 56 ना? ओके, परसेंटेज बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. No, No, sir. ठीक है, देख लेते हैं कईयों का यस है। हेल्थ रिसर्चर्स discovered that 20% of people who frequently dine out develop high cholesterol. क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। And 75% of those with high cholesterol are regular diners at restaurant. Additionally, 25% of the city's population regularly dines out. Based on this information, what percentage of total population is likely to have high cholesterol? बढ़िया है। टोटल पॉपुलेशन कितना ले लूं? 100. Now the problem is 20% of the people who dine out. पहली बात तो ये पता होना चाहिए, people who dine out. Hmm. 75% of those who have high cholesterol. इसमें ये पता होना चाहिए how many are having high cholesterol. हाँ। हाँ, sir. 25% of the city's population regularly dine out. ये information मिल गया। Dine out कितना कर रहा है? 25. अब चलते हैं वापस से इस लाइन पे। 20% of the people who frequently dine out develop high cholesterol. इनमें से high cholesterol कितनों का 5. होगा? 5। 20%, that is.
अब इस वाली इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। 70% ऑफ दोज विद हाई कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली डाइन आउट। जितने भी लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है उसमें से 75% लोग डाइन आउट करते हैं। डाइन आउट विद हाई कोलेस्ट्रॉल कितनों का है? 5. 100/15 हो गया। Hmm. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क प्लीज। No, sir. No, sir. 70% वाली चीज समझ नहीं आई। कौन सी वाली सर? 75% वाली। देखो सर, सबसे पहले मैंने 25% तो पॉपुलेशन डाइन्स आउट ये निकाल लिया, 100 में से 25 डाइन आउट कर रहे हैं। हाँ 20% ऑफ दोज हु डाइन आउट हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। इस 25 में से 5 लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है। बिल्कुल। अब ये तीसरी लाइन ऐसा बोल रहा है कि जितने भी लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है ना उसमें से 75% लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल है बिकॉज ऑफ डाइन आउट। अच्छा तो समझ गया। 75% of total people having high cholesterol is the people having high cholesterol because of dine out, which is equal to 5. ठीक है समझ गया। Clear है? Thank you. Shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, please. 57. 57. 57. एक सेकंड, हाँ 57 बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो देख लेते हैं। Four natural numbers are in proportion. Four natural numbers are in proportion. A upon B equal to C upon D. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. Sum of means is 44. B plus C equal to 44. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. The sum of extremes is 46. A plus D equal to 46. कोई दिक्कत? No, No, sir. No, sir. Difference of the positive difference between extremes. Difference between extremes. Okay. Sir, mod आएगा ना? Just give me 1 second. 1 second का टाइम दीजिए प्लीज. So sorry. चलो. So sorry. Let's continue please. ऐसा दे रखा है sum of the means is 44 लिख दिया. Sum of the extremes is 46 लिख दिया. Positive difference between the extremes is 3.5. हाँ आप बोल रहे हो मॉड आएगा राइट? Yes, sir. Because absolute आप is लिख given. सकते हो मॉड, बाकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम किया है कि एबीसीडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है. मतलब आप ऑब्वियसली Okay, इसको sir. उल्टा अज्यूम कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर भी अज्यूम कर सकते हो, बट रेशियो तब भी सेम ही रहने वाला है. तो आई एम बाय डिफॉल्ट अज्यूमिंग कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी. बाकी मॉड लगाने लगा तो कोई दिक्कत वाली बात. सो द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स इज 3.5 टाइम्स द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मीन्स. तो बी माइनस सी होगा, सी माइनस बी होगा, C minus B. बिकॉज मैंने ये अज्यूम किया ए सबसे छोटा है डी सबसे बड़ा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम्स. ओके फाइन. यार 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर टकरा। टकराएगा. ठीक है. एक बात बताओगे, हाँ सर। ऐसे सोच के नहीं निकाल सकते क्या अपन? कैसे? सर बहुत इंटेंट ट्रायल नहीं चल जाएगा। चलो यार, आई एम सो सॉरी, जस्ट अलाउ मी 1 more minute.
सो सॉरी यार। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो नहीं हो रहा है हिट एंड ट्रायल से, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। दो नंबर्स का सम 44 है, रिमेनिंग दो का सम 46 है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, डी माइनस ए इक्वल टू दिस है। सर हाँ हाँ सर बोलिए। ऐसे कर सकते हैं, जैसे बी प्लस सी के टोटल केसेस निकाल लेते हैं सॉरी, और ए वापस से बोलिए, वापस से बोलिए प्लीज। बी और सी के केसेस निकाल लेते हैं, ऐसे ही ए प्लस डी के निकाल लेते हैं, हाँ, फिर एलिमिनेट कर देंगे डिफरेंस देख के। कर सकते हैं, लेकिन यार केसेस डोंट यू फील लाइक बहुत ज्यादा बन जाएंगे? तो केसेस के बिना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से हो रहा है। जैसे कि जैसे प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 90 आ गया, बराबर आ गया। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया। आ गया। तो आपके दो दो के पेयर्स के अकॉर्डिंगली ए डी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू 45। नहीं मैम, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी थोड़ी है। मतलब आप जो सम बता रहे हो 90, वो तो सम है, हाँ, और एडी इक्वल टू बीसी तो प्रोडक्ट है ना। ओके ओके, सॉरी सर। गेटिंग इट है ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी। सर अगर हिडन ट्रायल करना है तो अपन को इवन लेना पड़ेगा ना डिफरेंस। डिफरेंस इवन लेना पड़ेगा 100%, बिकॉज 3.5 से मल्टीप्लाई करके इवन ही रिजल्ट चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे तो मतलब बहुत सारे मोटा मोटी मैं ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल के अलावा और कोई तरीका बेटर है क्या? नॉर्मल सर ये इक्वेशंस वैसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। सर चलो वो ठीक है, इक्वेशंस ही बनती जा रही है। लेट्स लेट्स सर लेट्स डू सब्स्टिट्यूशन। लेट्स डू वन थिंग। एक बार सोल्यूशन पूरा, मतलब अपन इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। नहीं बैठा तो फाइनली अपन हिट एंड ट्रायल कर लेंगे। बट एक बार करके देखते हैं कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। क्लियर है? यस। ओके यस यस सर। 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 तो let us do one thing. A equal to BC upon D. यस सर। BC upon D plus D equal to 46. यस सर। ओके, इधर से D तो नहीं निकाल पाऊंगा मैं। डी स्क्वायर माइनस 46 D प्लस BC इक्वल टू 0 नहीं बैठेगा। सॉरी, इसको हटा दो। और C माइनस B दे देता है। तो भाई इन दोनों को इक्वेट कर लेना, डी प्लस ए दे रखा है, डी माइनस ए दे रखा है, हम्म, इन दोनों यार को उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है मेरे हिसाब से। ऐड कर देना। ऐड करने से भी मेरे हिसाब से देखते हैं। चलो, डी को लिखते हैं 46 - A इक्वल टू 3.5, C माइनस 3.5 B। 46 - 2A इक्वल टू 3.5 C माइनस B। तो इधर से C माइनस B इक्वल टू 46 - 2A अपॉन 3.5, और C plus B equal to 44. So if I'll add the two equations, I'll have 2C equal to 44 into 3 कितना होता है? 3.5, I guess 132। 132। नहीं होता 132। 154 154। plus 46 minus 2A अपॉन 3.5। तो C हो गया मेरे हिसाब से 154 plus 46 कितना होता है? 200। 200। 200 माइनस 2A, हाँ यानी और 2 कॉमन ले लो, 100 माइनस हम्म। A अपॉन 3.5। हाँ है ना? हाँ। यस सर। अभी थोड़ा सा रेलेवेंट वैल्यू मिल गया मेरे को। A को एक ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे C नेचुरल नंबर बन जाए। हम्म। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। A को मैं 1 पुट कर सकता हूँ क्या? देखो, C को नेचुरल नंबर बनाना है ना, तो मेरा जो न्यूमरेटर होना चाहिए ना, है ना? हाँ वो या फिर समझ इसको रही थोड़ा सा हूँ। और बेटर कर लेते हैं। 3.5C प्लस A इक्वल टू 100। हाँ है ना?
यस यस सर। 7c plus 2a equal to 200, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आ गए। सी सी ए, सी को 0 पुट करो, ए कितना हो गया? 100 100 100। अब ए का नेक्स्ट वैल्यू कितने पे आएगा? 70 93 और 93 93 पे सी कितना होगा? 2 अपन 2 तब तक चेक करेंगे जब तक ए सी से छोटा नहीं होना, बिकॉज अपना हम्म। डिफॉल्ट अजम्पशन था कि ए सबसे छोटा है। हाँ हाँ ठीक है, गोइंग अहेड। या फिर एक काम करेंगे, सी को बड़ा रख के चालू करेंगे, यस सर। वो बेटर बेटर रहेगा, रहेगा सर। है ना? तो 190 मेरे हिसाब से 196 जाता है। तो जब सी को रखा मैंने 28, 196, तो ए हो गया 2। यस अब इससे बड़ा ए क्या हो सकता है? 9। 9 और 9 अगर ए 9 है तो ये कितना हो गया? 26। 20 26 और अगर हाँ ए 9 है फिर 16, हाँ ये 24 हो गया 24। ठीक है, 23 23 और ये हो गया 22। इसके आगे चेक करने की नीड ही नहीं है क्योंकि सी छोटा हो चुका है। नहीं हाँ मतलब मेरे पास ये हाँ नहीं कि यस सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, यस सर। पहला हाँ केस, हाँ। पहला केस, ए इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 28। और अगर ए 2 है इस वाली इक्वेशन से, डी बताइए कितना आएगा? 44। 44 डी 44 आ रहा है, बी कितना आएगा? 16। 16 हाँ हाँ। 2 अपॉन 16 इक्वल टू 28 अपॉन 44, हाँ या ना? नहीं नहीं, नो हाँ, सर। हटा दो। दूसरा ऑप्शन, ए को अगर मैंने लिया 2 की जगह 9, तो डी कितना हो गया? 35 5। 5 या वैसे ही देखने की जरूरत नहीं, 9 अपॉन 35 तो कटेगा ही नहीं। चलो फिर भी सॉरी देख लेते हैं, 37 सॉरी 37 आएगा। ठीक है, सी कितना हो गया और बी कितना हो गया? सर 20 18। कुछ गलत लिखा है। 18 हाँ तो ये तो होएगा ही नहीं वैसे भी 9/37 तो हाँ सर 9 ठीक है। बाय 18 इक्वल टू 26 बाय 37, सॉरी हाँ या ना? ना नो सर। तो तीसरे नो सोल्यूशन पे सर। चलते हैं। ए इक्वल टू 16, तो डी कितना हो गया? 30। 40 30 और सी कितना हो गया? 20 24। 20 ये रहा ना, ये 16 है तो सी 24 और 24 है। फिर वो 20 डी कितना डी हो गया? 20 20। 16 अपॉन 20, 24 अपॉन 30 बैठ रहा है क्या? 4/5 4/5 हाँ हाँ सर। बैठ रहा है बैठ गया। हाँ बैठ गया सर, मतलब ज्यादा। डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स 14। हाँ क्लियर है? ओके हाँ जी सर यस सर। यस सर। जल्दी से नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, 1 मिनट का टाइम और दे। डन सर। डन सर। Okay. चलो, ये क्लियर है? Shall I remove this? Yes, यस sir. सर। यस सर। Going ahead. Next, please. 60. बताने का है क्या किसी को? नो सर। नहीं नो सर। No, sir. Yes, sir. देखो सर, एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स 78 है। P प्लस Q प्लस R, 78 इंटू 3 कितना होता है? 75, 225 और 76, 228। ठीक है, Yes, सॉरी sir. 78 है, गलत है, 234 होगा। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सर अब S भी आ गया, P प्लस Q प्लस R प्लस S, एवरेज हो गया 75, सम हो गया 300, S पता चल गया 300 66। हम्म T, who is 6 kg more than S, T equal to 72, replaces P, मतलब अब है Q प्लस R प्लस S प्लस T, एवरेज है 72, 72 4, और कितना हो गया? 72 4, 288। 288। इसमें से S और T का वैल्यू पता है, 66 और 72, ऐड करने का 138, तो Q प्लस R हो गया 150, और Q प्लस R को यहाँ पे 150 पुट कर दिया तो P आ गया 84। क्लियर है सर? Yes, sir. Shall I remove this? 1 minute, sir. बस ठीक है, सर स्क्रीनशॉट ले लो सर
ले लीजिए आराम से लीजिए सर। यस सर, हो गया सर। नेक्स्ट प्लीज। 66। बताने का है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। एनीवन? नहीं है। लेट्स गो एट, बताइए आगे। 58। 58। 58? हाँ। हाँ। क्या बात कर, बताने का है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। नो सर। हो गया था सर, रहने दो। सर बता दो। बता देते हैं। How many integral values of R the quadratic equation has rational and distinct roots? ये rational और distinct roots कब होते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर Greater than zero. ग्रेटर b देन square जीरो। minus B 4ac greater than zero. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। Greater than. सर ग्रेटर देन So जीरो। greater than zero. equal to नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। उसमें distinct हाँ. roots नहीं आते, equal roots आ जाते हैं। क्लियर है? Equal. यस सर। Yes sir. एक और important thing, rational roots कब होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के केस में। When b square minus 4ac is a perfect square. हाँ या ना? यस। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिए। सर मेरे को नहीं पता था, ये बताओ एक बार। बता तो दिया मैडम, अब कैसे बताऊं, लिख के बताऊं? नहीं मतलब अरे परफेक्ट स्क्वायर मैडम ये सोल्यूशन, डेफिनेट बता कैसे रहा है? हूँ ना तो बोल भी तो दिया करो। देखिए मैडम, सोल्यूशन तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नोट्स में नेचर ऑफ रूट्स लिखवाया था। सर अब भी देख के बताती हूँ मैं, लिखा हुआ है देखो नहीं। मैडम जल्दी से। और कौन था दिया? Yes sir. मैडम नोट्स हैं आपके पास, हाँ. प्लीज ओपन द नोट्स। हाँ सर मिल गया. मिल गया? हाँ. अच्छा वो मिल गया, नहीं तो फिर मेरे को जादू करना पड़ता है। नहीं सर. हाँ जी, देख लो क्या नाम है, दीक्षा। दीक्षा मैम प्लीज देखिए एक बार। हाँ सर। देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये वैल्यू 2 है तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगी। हाँ सर। ये रैशनल है, इरेशनल है? सर इरेशनल। 2 की जगह अगर ये 4 है तो माइनस बी प्लस रैश माइनस 4 हो जाएगी। अब ये रैशनल है, इरेशनल है? सर रैशनल। ये Rational. रूट 4 2 होता है। तो ये रूट रूट कब का। हटेगा? जब तक रूट है तब तक इरेशनल रहेगा, बराबर। हम्म। रूट कब हटेगा? जब ये जो अंदर वाली वैल्यू है क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझ में ओके। आया? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी स्क्वायर है माइनस 4ac है, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। यस सर। ओके सर। अच्छा आर को, ये जो 4r है, 4 मॉड आर है, मतलब ये हमेशा नेगेटिव ही होगा, बिकॉज मॉड आर तो हमेशा 4 पॉजिटिव होगा और माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। Yes sir. आर को अगर मैं इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो इस सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कितना बन सकता है? 81। 81? 100. 100 क्यों नहीं बन सकता? 100 कब बनेगा? जब हाँ, R zero हो जाएगा. जब आर आर इक्वल टू 0। जीरो। एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 81 कब बनेगा? 100 माइनस 1981 है, मतलब जब ये जो 4 मॉड आर है ये हो जाए 19, हाँ या ना? यस सर। लेकिन इससे तो आर डेसिमल आ नहीं रहा पाएगा। है, हाँ। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ आर Yes sir. होगा क्या? नो सर। No sir. नो सर। उसके बाद 100 कंसिडर कर चुका हूँ, 81 कंसिडर कर चुका हूँ, अब किस पे आऊंगा? 64, मतलब 4 मॉड आर इक्वल टू 36, हाँ या ना? यस सॉरी। सर। हाँ। मॉड आर इक्वल टू 9, हाँ या ना? यस यस सर। सर। हाँ आर sir. इक्वल टू प्लस माइनस 9, हाँ या ना? Yes Yes. sir. यस सर। इसके बाद आएगा कि 64 से पहले 49 हम्म। कंसिडर करूंगा क्या? नहीं. नो सर। बिकॉज डिफरेंस 51 का है, वापस से डेसिमल नहीं आएगा। हम्म। 49 से Yes पहले sir. 36, 36 के लिए 4 मॉड आर कितना होना चाहिए? 64। 64. मॉड आर कितना होना चाहिए? 16 यानी आर कितना होना चाहिए? प्लस प्लस माइनस माइनस Plus minus 16. इससे पहले 36 से पहले आएगा 25, कंसिडर करूंगा क्या? नो नो सर। सर। तो नो 25 सर। से पहले क्या आएगा? 16, कंसिडर करूंगा 16 क्या? हाँ
तो हाँ, mod r सर। इक्वल टू 84 हो जाएगा, हाँ, तो mod r इक्वल टू 21 हो जाएगा, 21। तो r इक्वल टू प्लस माइनस 21 हो जाएगा। यस सर। यस इससे सर। पहले क्या आएगा, 16 से पहले आएगा 9, कंसिडर करूंगा क्या? नाइन नाइन 9 से सो पहले क्या आएगा? फोर 4, तो 4 के लिए4 mod r हो जाएगा 96, 96 तो mod r हाँ हो जाएगा 24, तो r हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 24। माइनस 21 24 4 इससे पहले आएगा 0, कंसिडर करूंगा क्या? नहीं नहीं क्यों? कर चुके हो हैं। गया ना ऊपर से अरे वो कंसीडर r इक्वल टू 0 में डिफरेंस इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा होगा। सर नहीं सर ग्रेटर देन 0 था ना डिस्टिंक्ट रूट्स में। ओ हाँ। हाँ वही आया हाँ जी। हाँ एवरीवन? Yes, यस sir. सर हाँ। दीक्षा यस सर, आ गया। आ गया ना? क्लियर। हाँ, अभी तो चाय का असर चल रहा होगा ना मैडम, खत्म थोड़ी चल हुआ रहा है? है, चल रहा है, चल रहा है अब सर। सेशन तक तो चला लेना। चल जाएगा सर तब सर तक। इसने कॉफी पी ली सर। तुमको कैसे पता है ये बताओ? सर ज्योति बहुत पंचायती करती है, इसको मेरी हर पल की खबर चाहिए। हद सर होगी। आपको लगता है मैं पंचायती करती हूँ? हाँ, हाँ कोई बात नहीं सर। लेकिन दीक्षा कॉफी पी ली यार, ये तो छोड़ने का सर यार। तो सर सर बहुत बनी गलत हुई पड़ी बात थी करी घर ना पे, मैं इसमें। पी ली जाने दो मैंने। मैडम, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वही जाने तो दो। मैं बोलती थी इसको कि इसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। छोड़ो छोड़ो, इससे बात ही नहीं करनी का, हटाओ इसको। सोल्यूशन Yes, sir. हटा दो. यस यस सर। कह सर। रहे सबका? Yes, यस क्लियर है? सर। चलो चलो, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट प्लीज। 59. बताने का है किसी को? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। All natural numbers that give a remainder 1 and 3 when divided by 10 and 9 respectively are written in ascending order, side by side, from left to right. What is the 299th digit from left of the number thus formed? किसी का सही हुआ है क्या? सच वाली बात बोल। नो सर। सर आया ही नहीं, कैसे करना है? सर ये बाद में तो हो गया था। बाकी और किसी का? No, sir. नो नो सर। सर नहीं हुआ। चलो बढ़िया बात है। चारों प्लीज अप्रोच बताएंगे जो आपने बाद में सही किया, जैसे सर मैं एक बार देख रही हूँ, वही रुकी। देख लीजिए मैम, ठीक है बताएं। मीनवाइल और कोई सोच सकता है कुछ? तो ऐसे किया था 21 सर हाँ, और पहले ऐसे फर्स्ट डिजिट्स वाला होते जाएंगे निकाल। 21 फिर एक एक 3 एक रिमाइंडर आएगा। नहीं, कौन बोल रहा है? सर पहले फर्स्ट वाला नंबर निकाल लिया था, निकाल लिया, ये ज्योति ने बताया फिर 21 आ रहा है, सही बोल रही है कि? हाँ वही आ सही रहा है। बोल, बढ़िया बढ़िया, फिर आगे उसके बाद 90 के डिफरेंस में चलेगा। चलेगा। ठीक है, तो फिर अब सर 2 डिजिट वाला तो एक ही हुआ, फिर मैंने 3 डिजिट वाले काउंट करे। ठीक है, फिर मैंने 4 डिजिट पे गई, और फिर फिर उसके बाद 299 था। बढ़िया अप्रोच है मैडम, एकदम सही अप्रोच। ठीक है, चलो फॉर अदर्स लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। All natural numbers that gives a remainder 1 when divided by 10. Any one of you can just tell me कि मैं नंबर क्या assume कर सकता हूँ? 11। मैम in terms of variable, because dividend equals to divisor into quotient plus remainder की हेल्प ले सकते हैं आप, मैं आइडिया दे रहा हूँ। 1। सिर्फ बेवकूफ बच्चों ना, इतना बड़ा हिंट देने के बाद 111 बोलने में। सर 0 ले लेंगे ऐसा। हे भगवान, सर मैडम मेरे 21। रूम की हाइट सर 10x+1 की फॉर्म में 10x+1 लेंगे ना? ओह सॉरी सर। हाँ समझ में आया या नहीं आया सबको? आ गया हाँ सर सर। आ गया आ गया आ गया। सबको आ गया? यस क्या बात कर रहे हो? सर यस सर। हाँ बोल रहा है, ठीक है। सर दिया हाँ सर। आ गया ना? हाँ। Let me know the number when divided by 9 gives a remainder 3. 9y प्लस अच्छा। पूरा बोलने के बाद अच्छा और करते हो मैडम, सर एक बार फिर से बोलना। और उसके बाद भी एक ही है। सर 9y+3। 9y+3 मैडम, रहने दो, आज का हो गया। अच्छा ओके। और ये दोनों सेम नंबर ही तो है। यस सर। 10x minus 9y equal to 2.
यस लिख सर। सकता हूँ? यस हाँ सर। ठीक है, इसका पहला सोल्यूशन बता सकते हो क्या यार? देख के पता चल रहा है कुछ? सर y2 रख देंगे तो हाँ तो y2 x2 आ x2 जाएगा। x1 y2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब ऑब्वियसली सही है बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 10x का यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आने वाला है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंस ऑफ 2, मतलब 9y का यूनिट डिजिट चाहिए 8, तभी तो यस सर। 0 - 8 करके 2 आएगा, बराबर है? हाँ। यस सर। हाँ 9y का यूनिट डिजिट 8 कब आता है? 2 2 पे मतलब x बाई इक्वल टू 2। 2 y इक्वल टू 2 ले लूंगा। हाँ। यस सर। ठीक है, सो आई गॉट माय फर्स्ट सोल्यूशन। व्हेन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, x को इधर 2 पुट कर दो जो है, या फिर y को इधर 2 पुट कर दो, पहला नंबर आ जाएगा, बताइए प्लीज। 21। 21 21। इसके बाद अगर अपन फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 1, कैन आई से द नंबर इज द सीरीज इज 11, 21, 31, 41, 51 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन? यस बोल सकता हूँ? इधर सर। 11 तो मिला तो 11। 10 के केस में। केवल ये बात कर रहा हूँ, व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर यस 1, सर। हाँ सर ले सकते हैं। हाँ। हो ना? व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 3, पहला नंबर 12, 21, 30, 39, 48 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन ले सकता हूँ? हाँ यस सर। एनीवन फ्रॉम इवनिंग बैच, पीडीएन? यस सर। मैम कल ही बताया था, इसमें कॉमन एपी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, बराबर है, बताया था शायद? यस सर। ठीक हाँ है, जी। मॉर्निंग बैच में भी बताया था क्या? यस सर। यस सर। अपन इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकाल रहे हैं, जो अपन ने एपी में भी किया था कि 2 एपीज दे रखे, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना होता है। यस यस सर। और उसमें मैंने क्या बोला था, अगर इसका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस 9 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस चलेगा इनका एलसीएम। 90 हाँ LCM 90 मतलब 21 के बाद अगला नंबर आएगा एक तो 1 1 111 उसके बाद आएगा 201 201 उसके बाद आएगा 91 291 ऐसे चलता रहेगा, बराबर है? यस आप इन सबको यस सर। सीक्वेंशियली लिख रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज कि 21, 111, 201, 291 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और इसमें 299 299 डिजिट्स चाहते हो आप, राइट? हाँ यस सर। सर। यस सर। इसमें से 2 डिजिट हटा दूं? हाँ हाँ। हाँ 2 डिजिट हट गए। अब ये जो एपी है 111 से शुरू हो रहा है, 201 पे जा रहा है, 291 पे जा रहा है, इसका आखिरी टर्म बता सकता है कोई? 1 क्या 1? हाँ या ना? यस सर। आपने आप 297 डिवाइडेड बाय 3 फिर आपने वैल्यू हाँ निकाली 921। 297 डिवाइड बाय 3 नहीं, मैंने किया है मैम 90 का मल्टीपल प्लस 21, बिकॉज सब में 90 का गैप है। हाँ। तो 90 का मल्टीपल 900 और उससे के बाद 990, लेकिन अगर 990 में प्लस 21 करूंगा तो 4 डिजिट में चला जाएगा, अच्छा ओके ओके तो मैं ठीक है सर। 921 पे रुक गया, चलेगा? हाँ जी। कितने टर्म्स हुए निकाल लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ये 111 क्या उधर सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा कितना? 9 सर सॉरी अपन 4 डिजिट में क्यों नहीं 810। जा रहे? 10 तो 9 एक सेकेंड, x10 10। हाँ यहां तक कोई दिक्कत? नो नो सर। ऐसे 10 नंबर है तो 30 डिजिट हो गया। यस 299 में से आपको 32 डिजिट अभी तक मिल चुका है, यस सर। 267 डिजिट मिला, बचा, बराबर? हाँ। यस सर। और 267 में सारे डिजिट 4 नंबर वाले होंगे, हाँ सारे नंबर्स 4 डिजिट वाले होंगे, तो कितने नंबर्स बनेंगे? 264 तक जाऊंगा केवल। यस सर। डिवाइड बाय 4। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर सर। अपन ये अलग अलग कंसिडर क्यों कर रहे हैं, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट 4 मैम डिजिट? क्योंकि आपको 299 डिजिट्स निकालने हैं, आप कैसे निकालोगे? कोई पैटर्न तो बनेगा नहीं इसमें, हाँ यस समझ रहे हो? हाँ सर।
भाई अभी तक सर मैंने 32 डिजिट काउंट किया, उसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर आ गए। अब इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकता ना, क्योंकि 4 डिजिट में 4 डिजिट एक साथ आते हैं, अभी तक 3 आ रहे थे, उससे पहले 2 ही आ रहे थे, हाँ इसलिए। सर अभी तो अभी आपने 32 माइनस क्यों किया, मैंने सुना मैम नहीं। ये देखिए, 2 डिजिट ये रहे, 30 डिजिट ये रहे, 299 में से 32 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। 267 और चाहिए, हाँ और सर एक 267। क्वेश्चन। यस मैम प्लीज। सर n इक्वल टू 2 के 10 के बाद में 29 पे शिफ्ट कैसे हुए थे? मैम n इक्वल टू 10 है, हाँ जी। मतलब यहां से लेकर यहां तक 10 नंबर है आपके पास, हाँ और सारे 3 डिजिट के हैं, हाँ मतलब 30 डिजिट्स हैं आपके पास। हाँ 30 डिजिट्स ये रही, 2 डिजिट ये रही, 32 डिजिट्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी है 299 ओके ओके ओके। लेफ्ट ठीक विद है सर। 267। इसके बाद जो हाँ आपको जी। डिजिट्स मिलेंगी ना, वो सारी 4 डिजिट नंबर होंगे, मतलब एक नंबर पे 4 डिजिट एक साथ आएंगे। हाँ तो 264 तक मेरे पास 66 नंबर्स आ चुके होंगे, हाँ कौन सी एपी के, जो कि थी 921 के बाद 9। 1011 1, सॉरी क्या है, 11 1101 आएगा क्या, 1101। 1101 हाँ सर। 1101। उसके बाद एक और बता दो यार, 1191 1191। इस वाली एपी के 66 नंबर्स और चाहिए, हाँ या ना। हाँ तो इसका 66 नंबर निकालते हैं, वो होगा A प्लस 65B। यस सर। क्लियर है? कोई यस कैलकुलेट सर। करेगा यस प्लीज, सर। 65 इंटू 90 कितना होता है? 6861। ये पूरा कैलकुलेट करके बता देना मैम। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, सर 66 इस नहीं है 264 में से 264 डिजिट्स और मिल चुके हैं, और हाँ अभी तक मैं जो लास्ट नंबर पे पहुंचा हूं इसमें, वो है 6861। हम्म इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 5 6951। नहीं 6 6951। 95 6951। दिस इज डिजिट नंबर 266, हाँ 267, सॉरी 296। 266 सर 296। वो 296 हाँ 296 ना, 32 भी तो ऐड करूंगा हाँ इसमें, हाँ यस सर सर 297, 298, 8। दिस इज 299। समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ सर यस सर। सर। यस सर बढ़िया। सर मतलब ये थोड़ा जल्दी होने वाला नहीं है क्या? नहीं है मैडम, ओके करने सर का मजा आया क्या? यस सर। हाँ तो ऐसे ही मजे आप लोग भी एग्जाम में लो ना, इतना इतने कोशिश मजे जारी मजे में है। एग्जाम निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। अभी क्लियर है सबको, ये प्लीज बता दीजिए। Yes, sir. हाँ सर क्लियर है। यस सर। Shall I remove this? Yes, यस sir. सर Shall we go ahead for the next one? हाँ Yes, जी sir. सर यस सर। क्वेश्चन नंबर 61. बताने का है किसी को? हाँ सर यस यस सर। सर। यस सर। किसी का आंसर आया क्या? सर वो टर्म वाला फॉर्मूला क्या था? कौन सा टर्म वाला मैम? वो सर ने करवाया था ना, सर ये बाइनोमियल से होगा ना। सर बायनॉमियल की बाइनॉम टर्म जो निकालते हैं। बाइनॉमियल का टर्म बताऊं? हाँ सर, फॉर्मूला। उसका जनरल एक्सपेंशन। अच्छा, ओके। ठीक है, यस सर। चलो आप समझने की कोशिश करते हैं। किसी का आंसर आया क्या इसका? एनीवन? नो सर। नहीं सर, हाँ सर। सॉल्व भी करने नो नहीं सर आया। अभी सिखा देते मैडम, जादू का नाम। यार देखो, बाइनोमियल कई जगह काम आ रहा है, आप केवल एक छोटी सी चीज समझ लो बाइनोमियल के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी की पावर 10, फॉरगेट अबाउट मेरे को कुछ आता है नहीं आता, मैं इसको एक्सपैंड करना सिखा रहा हूँ। इसका एक कोफिशिएंट होगा, बराबर? हाँ यस यस अपने यस को उस सर। कोफिशिएंट से कहीं मतलब नहीं है, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें। ओके। अभी बात करते हैं, a को हाईएस्ट पावर कितनी दोगे, 10 और b 10 को उसके साथ क्या दोगे? 0 0
इसके बाद फिर कोई कोफिशिएंट आएगा, लेकिन a की पावर क्या हो जाएगी? 9 और b की पावर? 1 1 फिर कोई कोफिशिएंट आएगा, a 8 की पावर क्या हो जाएगी और b की पावर? 2 ऐसे चलते चलते फिर कोई कोफिशिएंट आएगा और फिर a की पावर हो की जाएगी पावर 2, b की 0 पावर? oh sorry 8 8 फिर 8 a की पावर? 1 1 b की पावर? 9 और और 9 फिर लास्ट में a की पावर? 0 0 b की पावर? 0 10 10 यहां तक समझ में आया क्या नहीं है? यस सर ये यस समझ, सर। दो चीजें ऑब्जर्व करना है। एक तो कोई सा भी टर्म उठाऊंगा टोटल पावर हमेशा 10 ही रहेगी। यस सर सर दूसरी मेरा बात, एक डाउट है, यस मैम, इसमें ऑल्टरनेटिवली साइंस नहीं चलेंगे? क्योंकि प्लस है ना, सॉरी सर प्लस भी लिखा है मैंने। अच्छा सॉरी समझो ना, पिछले साल की रटी हुई चीजें भूल जाओ ना, कब तक रटते अरे रहो। नहीं सर दूसरी बात, पहली बात मैंने बोला कि कोई सा भी टर्म उठाओगे टोटल पावर हमेशा 10 आएगी, हाँ या ना? हाँ। यस सर दूसरी बात, ए की पावर कंटिन्यूअसली रिड्यूस होगी बाय 1, बी की पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी बाय 1। यस यस सर ये सर। दो चीजें क्लैरिटी से समझ में आ गई। यस द सर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, यार एक बात बताओ, ये इंटीग्रल कब होगा? सर जब 21 जब से डिवाइड हो जाएगा की पावर पावर 1/3 हो, 2/3 हो या 3/3? 3/3। बराबर। यार एक सर ये नहीं समझ आया क्या बोला आपने अभी। मैडम, ये मैंने अभी चाइनीज में बोला था, आपको थोड़ी देर में समझ में आया। अरेबिक होती तो जल्दी आ जाता। सर बताओ ना प्लीज। बता रहा हूं ना मैडम, बोलने तो दो। देखिए, कौन बताएगा यार? चलो कोई भी बता दो। इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 652। 652 ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। एनीवन? भाई ये तो नहीं आया होगा यार, ये तो टेक्निकल चीज है, कैसे आ सकता है? तुम लोग पूछो ना। सर आता है सर। आ गया तो सर आ गया ये तो। सबको आ गया? यस सर अभिषेक सर ने पढ़ाया है हमको ये। मैडम मैं डाउट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। सबको आ गया क्या? ओके। यस सर सर चलो बढ़िया। पहला टर्म क्या होगा इसका? 2 power 1/3 power 6 power 51 into 5 power 2/7 power 0 मतलब पावर लिखने की 0। जरूरत नहीं, पावर 0 1 हो गया। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी मैम ये इंटीग्रल है या नहीं है? है सर 217 हाँ है इंटीग्रल। यस हाँ सर सर यस सर। ये जो 652 टर्म्स है ना, इसका पहला टर्म इंटीग्रल है। दूसरा टर्म क्या होगा? 650 5 2/7 पावर 2 से हाँ ये पावर 1 ये इंटीग्रल है या नहीं है? नो नहीं है। 0 अच्छा, 650 के बाद 649 होगा तो इंटीग्रल होगा क्या? नहीं नहीं होगा। नो सर 648 होगा होगा तो इंटीग्रल होगा क्या? नहीं नहीं सर नहीं 48 होगा। 48 हो। 48 होगा। सर वो 3 नहीं सर होगा सर, 48 5 में की पावर इंटीग्रल बदला नहीं नहीं होगा होगा। ना। मतलब मुझे हाँ ये समझ में आ रहा है कि अगर इसकी बात करूं ना, तो हर थर्ड टर्म आपका इंटीग्रल होगा। यस सर यस सर यस। फर्स्ट टर्म हो गया तो नेक्स्ट फोर्थ होगा, हाँ फिर सेवेंथ होगा, हम्म so on, so on. हाँ इसकी बात करूं तो हर कौन सा टर्म इंटीग्रल होगा? 7th टर्म। टर्म। सर एक चीज टर्म सेवेंथ टर्म। 7th होगा। नहीं 8th टर्म। सर 8 होगा ना अबे 8th होगा 8th। हाँ सर 0 से एक स्टार्ट। काम करो, तुम पूछ लो, तुम बता दो और डिसाइड करके आंसर निकालो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा सेवेंथ सॉरी होगा। 7th ही होगा सर। When you're starting from 1 then it is 8. Starting from 0 then it is 8। Starting from 0 then it is 7. सर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 8 होगा ना चलो ठीक है मैडम, लिख देते हैं 5 की पावर 2/7, दिस इज द 8th टर्म।
सर एट्थ टर्म में पावर 8 7 में तो ही पावर होगी। 7 होगी ना। मैडम जब आप जीरो को कंसीडर करते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन हो गया, नहीं फर्स्ट टर्म आ गया, अब एट्थ टर्म आ रहा है। अबे यार, अच्छा ओके ओके। नहीं नहीं, लेट मी एक्सप्लेन मैडम। ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे जाते जाते ये सातवां टर्म और ये आठवां टर्म। समझ में आया? तो व्हेन यू आर सेइंग कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये एट्थ टर्म है, मतलब कंसीडरिंग दिस टू बी द फर्स्ट टर्म, दिस इज द एट्थ टर्म। गैप तो सेवन का ही रहेगा, जीरो से सेवेंथ टर्म ही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? हाँ यस सर। सर मतलब जीरो वाला फर्स्ट टर्म था तो 7 वाला एट्थ टर्म हुआ ना। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, इफ यू आर कंसीडरिंग इट फ्रॉम वन टू एट्थ टर्म देन इट इज जस्टिफाइड। अदरवाइज एवरी सेवेंथ टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म है उसके बाद एट टर्म है, तो कैन नॉट यू से इट लाइक दैट कि एवरी सेवेंथ टर्म इज डिविजिबल, इज गोइंग टू बी इंटीग्रल। हाँ सर हाँ। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एवरी सेवेंथ टर्म इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल, राइट? यस सर। यस सर। नाउ पहले आप बोलते हो टू के लिए हर तीसरा टर्म इंटीग्रल हो, हाँ सेवन के लिए हर सातवां सेवन टर्म इंटीग्रल होगा, फाइव के लिए सॉरी, हाँ। और केवल इसके इंटीग्रल होने से चल जाएगा क्या? दोनों नहीं का होना नहीं पड़ेगा। केवल इसके नो इंटीग्रल सर, नहीं चलेगा, टर्म्स मतलब कौन ऐड सा हो रहा टर्म है। इंटीग्रल होगा? 21। हर 21st टर्म इंटीग्रल होगा। यस सर। पहला टर्म ऑलरेडी इंटीग्रल हो चुका है, ये देखिए। हम्म। तो अगला टर्म कौन सा इंटीग्रल होगा? 22nd। 22 अगला टर्म कौन सा होगा? 43 43 43 अगला टर्म कौन सा होगा? 64 64 कैन आई से इट्स एन एपी? यस यस सर। इसका सर। nth टर्म निकाल देते हैं। मैं कंसीडर करता हूँ 651 इसका nth टर्म है, अगर नहीं होगा तो डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। तो 651 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया 650, सॉरी 652 लूंगा मैं यहाँ, हाँ नंबर सर। ऑफ टर्म 652 है, सॉरी फॉर दैट, राइट? यस यस सर। सर। तो 651 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू n माइनस वन, डिवाइड करके बताएगा कितना आ रहा है? 30 पॉइंट समथिंग 31 आ रहा है ना 9। एग्जैक्ट, 630 जाता है। अच्छा ओके सर, मेरा तो कैलकुलेटर ही खराब है। आपने 650 ले लिया होगा आई गेस, हाँ सर। है ना? सो ठीक है, 32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का चल सकते हैं आगे? हाँ यस सर। सर। श्योर एवरीवन, एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क अगेन। नो सर। नो 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 सर। सर। नो सर। नेक्स्ट प्लीज, कैन आई रिमूव 64 दिस? यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 64 बताने का है किसी को? यस सर, बता दो। नो सर। नो सर। क्या देखो, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊं क्या? बता दो सर। कैलकुलेटर लेके कैलकुलेटर लेने का। सर वही किया था। वही किया था। वही कह रहे सर। कैलकुलेटर भी सर यूज वही किया के था। सर सही है ना, ऐसे ही करना है ना। 100% देखो, इसमें इसकी टेक्निकल अप्रोच में घुसोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चों के दिमाग में आता है, सर स्क्वायर कर दो, चलो कर देते हैं। 5 नहीं सर। प्लस 23 प्लस 2 रूट 115, हाँ है ना? हाँ यस। हाँ सर। यहाँ पे आएगा 11 प्लस 14 प्लस 2 रूट 154, हाँ है ना? हाँ हाँ सर। अब हाँ आप सर। बोलोगे 28 प्लस 2 रूट 115, हम्म 25 प्लस 2 रूट 154, 150। यार देखो यहाँ पे 3 का गैप है। अब ये रूट 115 और रूट 54 में कितना ही गैप क्रिएट कर लूंगा, 3 का तो नहीं ला पाऊंगा। यस हाँ सर। यार, तो आपको अपेरेंटली आंसर ये लगेगा और आंसर ये है। तो बेटर नॉट टू गो विद एन अप्रोच लाइक दिस। इसमें भी अल्टीमेटली आपको रूट 115 और रूट 154 कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है, डायरेक्टली कैलकुलेटर ऑन करो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, खत्म करो।
क्लियर है? यस सर। यस Yes, सर। तो किसी ने किया है कैलकुलेटर से? यस सर सर। मैंने किया था। हाँ कितना सर आंसर आ इनका रहा है वाला मैम? सर 0.2 का डिफरेंस, एक मिनट एक हाँ बार 3 सर बहुत क्लोज डिफरेंस था। कितना हाँ पॉइंट? सर, एक में 0.6 और एक में 0.8 था, तो यू गेटिंग सर इट? यस अच्छा मैम, कुछ बोल नहीं रहे नहीं हैं? सर नहीं नहीं ये गैप है, आप इसको अप्रोक्सीमेशन से डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कभी। यस सर। सो बेटर नॉट टू गो विद एनी अप्रोच फॉर दिस, डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, मेरा सजेशन ये है। किसी को कोई ऑल्टरनेट अप्रोच आती है तो वी कैन डिस्कस अपॉन दैट। नो सर नो सर। Shall I remove this? यस सर। yes, यस सर। यस yes. सर Thank you so much. Going ahead with the next one, please. 45। बताने का है किसी को? डेटा मिसिंग है तो एक बार रीड कर लेता हूँ, क्या पता बैठ जाए। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर डैश इज इक्वल टू डैश। नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दूं? हाँ सर यस छोड़। हाँ सर। सर, यस सर सर नेक्स्ट प्लीज। 48। 48। ये बताने का है किसी को? सर हाँ Yes, ये ma'am. ऑप्शन सर इसमें हम पहले, मतलब मुझे बस समझना था, जो कांस्टेंट होता है उसको वो कर लेते हैं ना क्या करना है? आरएचएस पे। जैसे यहाँ 5 -5 है तो मॉड 2x-7 ग्रेटर देन 15 और लेस देन -10 ऐसे ही करेंगे ना। नहीं, आप क्या बोल रहे हो? -5 है तो उसको उधर भेज देंगे आरएच ग्रेटर देन, मतलब उसको 15 बना देंगे। बराबर। मतलब पहले हमको जो मैम विदाउट वेरिएबल वाला है सुनिए वही करना सुनिए होता है ना। सर मैम, दो दो केसेस बनेगा, एक बार 15 बनेगा, एक बार 5 भी बनेगा, वो मॉड ओपनिंग पे ओके डिपेंड करेगा। सर एक बार बता दो सर ना। एक चीज यस पूछनी मैम। थी। हाँ जी सर पूछिए। मैंने इसको जो ऑप्शन में ये 12, और 10, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, तो सर मैंने 10, 11, 12 ऐसे एक्स को पुट करके फिर सर एक बार ट्राई कर लिया था, तो सर 10, 11 तो बैठ नहीं रहा था, तो सर मैंने फिर फर्स्ट ऑप्शन मार्क किया था। ओ सॉरी मैम, आई कुडंट गेट इट, कैन यू प्लीज रिपीट? सर जैसे ऑप्शन में 12, लिखा है ना यूनियन के बाद, यस मैम। तो सर मैंने एक्स की वैल्यू 12 पुट करके देख ली एक बार। ठीक है, एक बार जैसे बाकी ऑप्शंस में 10 और 11 है, तो सर एक बार आपने 12 पुट किया, 12 पे सही आ रहा है गलत आ रहा है? सर 12 पे सही आ रहा है और 10 और 11 पे नहीं कर रहा वो सेटिस्फाई। अब देखिए मैम, बात को समझिए। अगर सर ये आपका 12, सुनिए सुनिए। यस सर मैम, कोई कुछ बोल रहा है प्लीज? सर मैं बोल रही थी ब्रैकेट की वजह से होगा ना। मतलब लॉजिकल पॉइंट मैम, देखो अगर आपको 12 पे सही आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इन तीनों वैल्यूज में 12 आ रहा है, तो आपने वैल्यू ही गलत सिलेक्ट की है। सर बट 11 पे सर वो इक्वल टू 10 आ रहा है और अपन को ग्रेटर देन 10 11 पे चाहिए। सही आ रहा है गलत आ रहा है? 11 पे गलत आ रहा है सर। 11 पे गलत आ रहा है मतलब 11 इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, और इसमें 11 हाँ इंक्लूडेड है, इसको और हटा दो। अब सर यस अब मैम। सर फिर तो ये दोनों 11 और ऑप्शन 12 क्यों पुट कर रहे हैं पर अपन, वो तो मैम ओपन मैं भी नहीं, ब्रैकेट्स है। मैं नहीं कर रहा हूँ मैम, आई एम सो सॉरी। दिया कर रही है, दिया जवाब दो चादर को, क्यों कर रही हो? सर आंसर लाने के लिए। आंसर लाने के लिए मैडम। ओके सर। अभी डिस्कस करें? यस हाँ सर बता दो। अप्रोच सही थी या थोड़ा नहीं थी? अप्रोच सही है मैम, आपका वैल्यू सिलेक्शन गलत है, अप्रोच में कोई गलती नहीं है, वैल्यू ओके सिलेक्शन गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर -∞ to 0, -∞ to 0, -∞ to 0, -∞ to -4। मैं डायरेक्टली -1 पुट करता हूं ना, क्या होगा? अगर ये -1 पे ट्रू है तो मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट, अगर ये हाँ -1 पे फॉल्स है तो मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट और मेरा आंसर आ गया। सर वो मैंने बस 12 देख के उसको मार्क कर दिया, मैंने वो ब्रैकेट्स का मैं वो भी नोटिस। समझाऊंगा, लेकिन ये समझ में आया -1 पुट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। हाँ गॉट ठीक इट है, सर गॉट इट। अब अगर सपोज करो -1 पे ट्रू आ रहा है तो मेरा केवल ये ऑप्शन गलत हुआ है अभी तक। हाँ अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों में देखने का है। अब लॉजिकली थिंक ओवर इट, अगर मैं इसमें 13 पुट करता हूं और ट्रू आता है तो तीनों ही सही है अभी तक तो यार, एलिमिनेट ही हाँ नहीं होगा कुछ। हाँ सर।
तो इसलिए तो मैं एक्सट्रीम वैल्यूज। मैं ऐसे ही पुट करूंगा जिसमें कुछ एलिमिनेशन पॉसिबल हो। इसमें 12 टू इंफिनिटी बोल रहा है, इसमें 11 टू इंफिनिटी बोल रहा है, इसमें 10 टू इंफिनिटी बोल रहा है। इस वैल्यू पे तो सब सही है ना। हाँ तो हाँ इधर आई सर, पुट अ वैल्यू फर्स्ट लाइक दिस केस और में। लाइक दिस और लाइक दिस। समझ में आया? हाँ ये भी सर। नहीं पुट करूंगा जब। क्लियर है? अब मैं इसको पूरा समझा देता हूँ कैसे करना है। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था कि यार मेरे को -1 पुट करना है, x इक्वल टू -1 करके देखो। -1 इंटू 2 -2 माइनस -2 माइनस टू, -7 माइनस नाइन, -9 -9 का मॉड नाइन, 9 -5 4 4 फोर, 4 ग्रेटर देन 10। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। false फॉल्स। खत्म खत्म खत्म। आंसर ओके सर। यस क्लियर है? तो सर यहाँ हमने यही किया ना, हमने -4 से जैसे उसके उससे छोटा था, बड़ा था सॉरी, -1 वो लेके पुट करके देख लिया। बराबर। जो -4 के इंटरवल में नहीं आ रहा वो पुट कर दिया। -4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जो नहीं आ रहा था। ठीक है सर, ठीक एग्जैक्टली। है। चारों अभी सही वैल्यू लिया। सॉरी सर। x इक्वल टू -1 तो सही लिया। हाँ सर। मैडम ये दिया की गलती थी, मैं सही करता हूँ। सर सर मेरी मैं क्या गलती है इसमें? सॉरी मैडम, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। ओके सर। मेरी गलती मेरी। हटा सर दूं? मैंने जैसे किया था ना, एक बार मैंने आपको भेजा, एक बार देखोगे? एक सेकंड कीजिए, मैम देख लेते हैं। मेरे पास वैसे कुछ आया नहीं। आगे 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 सॉरी। नहीं कर सकते मैम ऐसा। पुट करके ही देखना पड़ेगा। हाँ मैम देखो, आपने जो किया है ना उसको लिख गलत दिया। समझो बात। आपका पहला आ रहा है x ग्रेटर देन 11, x ग्रेटर देन 11, है ना? हाँ। लाइन नंबर 6 में देखो। हाँ हाँ, x ग्रेटर देन लाइन 11। नंबर 6 के बाद दो लाइनें कटी हुई है, फिर सेकंड लाइन कटने के बाद सेकंड लाइन x लेस देन हम्म -4। हम्म मतलब व्हाट यू हैव रिटन इज, पहले आप लिख रहे हो x ग्रेटर देन 11, फिर आप लिख रहे हो x लेस देन -4, फिर आप इसको कंबाइन करके पता नहीं क्या कर रहे हो। मैम ये थोड़ी ना कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन होगा कि x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 11। इसका मतलब या तो x 11 से इंफिनिटी तक होगा या फिर x हम्म माइनस इंफिनिटी से -4 तक होगा, जो हाँ, कि इसके करेक्ट आंसर है। बीच में नहीं होगा, नहीं नहीं, सही बात इसके है, वो बीच में मैंने नहीं होगा। रेंज डिफाइन कर दी। हाँ, जो नहीं होगा उसको आपने होगा कर दिया। हाँ, ओके। ठीक है? सर मैंने क्या किया ना, मैंने -4 और 11 देखा ऑप्शन, तो मैंने वो टिक कर। आंसर सही था क्या आपका? हाँ सर, देखो ना, इधर भी -4 11 आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। बढ़िया बढ़िया मैडम, खुश हो जाओ। नहीं सर, पर ये तरीका अच्छा है पुट करके देखने वाला। फिर भी मैम खुश तो हो सकते हो ना। सर खुश खुश तो है ही। चाय मिलेगी तभी खुश हुई। हटा दूं क्या? yes यस sir सर। हटा दो। सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ। यस मैम प्लीज। सर ये पॉइंट ऐसे, ये वाला ही क्वेश्चन ना ऐसे आ जाए थीटा के अंदर कि कितने पॉइंट्स एक्सक्लूड हो सकते हैं। एक्सक्लूड एक्सक्लूड वाला तो आ सकता है। 100% आ सकता है। हाँ, तो फिर मॉड इंक्लूड ब्रेक वाला करके भी आ कैसे सकता है, इसका करेंगे? इनइक्वालिटी चेंज कर दो, इंक्लूड वाला बन जाएगा। हाँ। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, 100% आते हैं। फिर सर मॉड डबल मॉड ब्रेक वाला प्रोसेस। जो दीक्षा ने किया। क्या? दीक्षा क्या किया? सर 5 को वहां भेज दिया, 15 कर दिया, मतलब मॉड 2x - 7 ग्रेटर देन 15। सर पर इसमें तो केसेस बनेंगे ना। पहला केस। और ठीक है। दूसरा केस। ठीक है। हाँ। इसके फर्दर दो केसेस। हाँ।
इसके फर्दर दो केसेस, हम्म, इन चारों केसेस को सॉल्व करके आंसर है। ओके Okay, better not to do with the approach until unless you are being asked upon the for the number of solutions, number of values satisfied, ओके है ना? हटा दूं? ओके एक Yes ma'am, take your time. डन सर। Next please. 50. बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये वाले क्वेश्चन बढ़िया हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ जी सॉरी, कुछ बोल रहा है। पर ये पैटर्न ही बन के होता है क्या? मैम देख लेते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर सर। तो देखो एक थोड़ा सा फंक्शंस को ऑब्जर्व करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे लास्ट केस में इफ यू रिमेम्बर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई वाला फंक्शन आया था अपने पास। हाँ सर। यहाँ पे आपको एफ वन इक्वल टू 3 दे रखा था, फिर आपने निकाला था 3, एफ टू इक्वल टू 9, एफ थ्री इक्वल टू 27, 27. so on, so on, so on. 27. मतलब अगर ये हाँ वाला फंक्शन आता है ना तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ जीपी। यस Yes, सर। sir. GP है। समझ में आया? वैसे इस हाँ टाइप के फंक्शंस को कैसे करते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन समझो। जब भी एक्स के साथ 1/1 - x आ जाए ना, करना क्या है आपको, F12 निकालना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, एक्स को कितना पुट कर दो? 0. Sir, 13. एक तो सर दिक्कत तुम लोगों के माइनस साथ ये है, मैं बोलता हूँ 11 दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है, तुम लोग अपना दिमाग काम में लेने लग जाते हो। दिमाग को काम में साइड में रखो। अब सोचो दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है। ये भाई तुमको क्या निकालने का है? Sir, F12 13 बोला F12 इसलिए निकालने का है। मैंने। हाँ हाँ सर। तो अगर F12 निकालने का है तो एक्स को क्या पुट करोगे? सर 13। 12 क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो, 12 पुट कर दो ना। 12 कर दूं? ओके कर यस दो यस सर। सर। ट्वाइस एफ ऑफ -11, हाँ या ना? हाँ 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 सर। प्लस एफ ऑफ 12, हाँ या ना? हाँ Yes, इक्वल यस टू sir. 1 - 36 + 144, हाँ या ना? यस हाँ सर. सर। चलो बढ़िया बात। अब प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन में? -11. F f of minus. -11 एक दिक्कत है। हाँ हाँ तो यार एक सर। काम करो, एक बार f को -11 पुट करो। यहाँ पे -11 पुट किया, ये क्या बन गया? ट्वाइस एफ ऑफ 12. 12 f ऑफ -11 इक्वल -11 टू 1 - 3 इंटू -11 प्लस 121, हाँ या ना? 121 This यस is सर। two variable two equation. You may consider F12 equal to x, F -11 equal to y. You are having 2y plus x equal to 144 में से 35 गया 108 109, अच्छा +1 में, हाँ और you have 2x plus y equal to 121 plus 122 155। 155 155 दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, x का आंसर आ जाएगा, खत्म है, क्लियर है? सर पर ये हाँ कैसे सर। पता चलेगा कि एक बार मतलब जैसे 12 पुट कर दिया फिर सर मतलब ऐसी दो इक्वेशंस आ जाएगी? कुछ तो सर ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें वैल्यू निकालती ही रहनी पड़ती है पैटर्न देखने के लिए। बराबर। अब इसको सुनो पहले, मैंने क्या सर आपकी बोला? आवाज नहीं आ रही। इज इट ऑडिबल टू ऑल? यस यस सर। एवरीवन? मतलब धीरे आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रहा है? धीरे आ रही है थोड़ी। वो धीरे ही बोल रहा हूँ यार, थक गया हूँ सुबह से काम करके। देखो सुनो, बात बात ऐसी है कि मैंने बोला पैटर्न ऑब्जर्व करना है। हाँ जब x के साथ 1 - x दे रखा है, हाँ गेटिंग इट? जैसे मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं आपको एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - 6 4 - x, हाँ ठीक है, इक्वल टू समथिंग।
मैं बोल रहा हूँ F7 का वैल्यू निकाल के बताओ। आप सबसे पहले क्या करोगे, x को कितना पुट करोगे? 7 तो ये F7 प्लस f ऑफ -3 आ गया। अब एक्स्ट्रा क्या हाँ है आपके पास? -3 तो एक f को -3 पुट कर दो। ये -3 4 माइनस -3 कितना होता है? 7 खत्म, दो वेरिएबल तो इक्वेशन बन गया। ठीक है सर। ये पैटर्न ऑब्जर्व करवा रहा हूं क्योंकि फंक्शंस के क्वेश्चंस मेजरली पैटर्न बेस्ड होते हैं। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि इस वाले पैटर्न में क्या लगेगा। दैट्स ऑल वी नीड टू डू। वी माइट गेट द आंसर प्रोबेबली इन दैट केस, राइट? तो यस अगर इस पर्टिकुलर टाइप का यस क्वेश्चन आया तो पैटर्न समझ में आ गया। हाँ नाउ कैन यू डू इट? यस इज दैट क्लियर सर एवरीवन? यस मैम एक प्लीज। चीज पूछनी थी अपन, ये स्टेप मुझे समझ आ गया। एफ को हमने -11 जब 12 लिया तो 2f -11 आ गया। अब यस फिर जब सेकेंड स्टेप में क्या लिया हमने, -11 लिया यस एक्स मैम। को। हाँ, तो सर जब मैं 2f 1 माइनस -11 करती हूँ तो सर 12 कहाँ से आएगा? मैम देखो आजकल ऐसे 1 माइनस -11 लिखते हैं ना, तो ये 1 + 11 बन जाता है। सर -1 है ना? कहाँ है अच्छा -1? नहीं सर 1 है, 1 ठीक है सर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी सॉरी। अभी क्लियर है मैम? हाँ हाँ सर क्लियर है, मैं उसको -1 समझ रही थी। कोई ना, कोई ना। एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? No, sir. इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ सर यस समझ आ गया। Shall we go ahead? यस Yes. सर। Shall I remove this? Yes, sir. Next, please. Sir, 51. बताने का है? No, sir. Anyone? नो सर। नो सर। दिया? हाँ सर बताना है? बता दो सर, अगर आपकी मेहनत ज्यादा ना लगे मेहनत तो बहुत लगेगी। तो फिर मत बताओ सर। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम सर। यार देखो, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते ना तो ये क्वेश्चन हो सकता। एक आइडिया दे देता हूँ। प्रोग्रेशंस मैंने पढ़ाया था। तो 1/4 यस एग्जैक्टली, प्रोग्रेशन पढ़ाया वाली था। चीज। हाँ प्रोग्रेशन पढ़ाया था, तब मैंने क्वेश्चन करवाया था। ट्राइंगल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्किल, सर्किल यस के अंदर। Yes, sir. हाँ ये सर। वही तो है भाई। बड़े वाले ट्राइंगल का यस एरिया निकालो। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस अब बड़े वाले सर्किल का एरिया प्लस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया, मतलब इन दोनों को ऐड करने का है, इन दोनों को ऐड करने का और फाइनली सब्ट्रैक्ट करने का है। और कॉमन रेशियो में वहां पे बता चुका था कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनता है तो कॉमन रेशियो साइड का 1/2 होता है। ये क्या बताया सर, ट्राइंगल के ना ट्राइंगल बनता है तो तो साइड का 1/4 था ना, ये 1/2 मैं वो सॉरी। जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल था सर्किल के बिना, ऐसा वाला केस था। अच्छा ओके। और उसमें भी साइड का रेशियो तो 1/2 ही था, एरिया का रेशियो हम्म। 1/4 था। हाँ एरिया का रेशियो साइड का 1/4 था। रेशियो यहाँ पे भी 1/2 है, एरिया का रेशियो यहाँ पे भी 1/4 ही होगा। हम्म। पर तो सर जिनको, जैसे सुनो सुनो सुनो, किसी को समझ में आया मैं नहीं क्या बोला अभी? हाँ सर। हाँ यस सर। तो जिनको नहीं आया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इसको अभी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं ले जाऊंगा। जिनको समझ में आ गया वो निकाल लेंगे। हाँ सर बस एक यस चीज सर। यस सर। पूछनी है। जो बोलिए मैम। बड़े वाले सर्कल का एरिया है ना, हाँ, सब वो वो कैसे कैसे। निकालेंगे? हाँ तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस निकाल लो। रेडियस। अब ये रेडियस। पूछो बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैसे निकालेंगे? हाँ वही। यस मैम। बड़े वाला सर्किल जो है ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल का ये है। इन सर्कल ये का आपको समझ हाँ में आता है फिर। क्या? हाँ तो इस फॉर्मूला भी सर्किल का जो रेडियस होता है ना, उसको अपन ये बोलते हैं। इन रेडियस हाँ। और इन रेडियस निकालने का एक तरीका होता है, एरिया ऑफ 3/2। ट्राइंगल, जो बड़े वाले एरिया है √3/4 a², हाँ उसको आप इक्वेट कर दोगे एस आर से। ये आर जो है ये इन रेडियस है, और एस होता है सेमी पेरीमीटर 3a/2। सेमी अब इससे ज्यादा पैरामीटर। टेक्निकलिटी में मत जाना, गॉट इट सर। आगे। बता दूं। सर तो इससे रेडियस आ जाएगा बस अभी, है यस ना? मैम। मत समझो, ट्रस्ट मी, मत समझो। अगली बार गलती से क्वेश्चन आ गया तो दिमाग लगाते रह जाओगे, इस क्वेश्चन में होगा नहीं। A + B + C/2 ना? मैम इक्विलैटरल है तो 3a/2 हो जाएगा।
हाँ ये मतलब by 2 हो जाएगा ना, गॉट इट सर। Shall I remove this? यस Yes, सर यस sir. सर। Yes, sir. Okay, fine. Going ahead. Next, please. 53. 53. बताने का है किसी को? डेटा मिसिंग है, छोड़ दो। नहीं No, बता, sir. Sir, 54. बताने का है किसी को? नो सर। हाँ सर, नो सर। Sir, sir, मैंने 2 और 3 सर ये वैल्यू तो पुट करी डायरेक्ट थी, मैंने भी हो सर रहा था। मैंने करी भी थी। वैल्यू हाँ पुट ये की। गिव्स डोमेन क्या होता है, कोई बता पाएगा? जो वैल्यू अपन एक्स में पुट इसमें कर डाल सकते पुट हैं। कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सी वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइंड है x की? हम्म और लॉग की कंडीशन क्या होती है कि इसके जो अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव होनी होनी। चाहिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, करके बताऊं? हो जाएगी सर। सर हो गई हो गई। मिडिल टर्म करके यही आएगा -4 9/2। हाँ सर -4 9/2 आएगा। गॉट इट सर। करके बताऊं? नहीं सर। नो सर। चले आगे। यस सर। यस Yes, Shall I sir. remove this? हाँ जी, sir. Yes, sir. यस Next, please. 55. 55. बताने का है किसी को? No, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Next, please. 62. Please thrice as efficient as this. डेटा Data मिसिंग है। missing. हटा दूं? हाँ, sir. हाँ sir. यस Next, please. 65. Aladdin has Data two bags missing है. this with gems. हटा दूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। 65. 63 वैसे कर सकते थे, मुझे दिवित ने बताया था ये क्वेश्चन। Aladdin has two bags A and B, बस यही डेटा मिसिंग था। Sir, ये he randomly takes out 1 gem from bag A लेंगे फिर आगे. Bag A has 6 rupees and 9 emeralds. Bag B has हाँ. 9 rupees and 15 emeralds. He randomly takes out 1 gem from bag A and places into bag B. He again take out 1 gem at random from bag B and places into bag A. What is the probability? सर तो एक बार बता दो ये क्वेश्चन। ये दिव्यत ने मुझे बताया था। आई एम नॉट श्योर कि ये जो डेटा वो बता रहा है वो सही है नहीं कोई बात नहीं सर। पर सर टेक्निकली आंसर शायद निकल ए गया और बी ही तो आएगा। है। मेरे को क्या पता है, सही होगा ना यार। बता देगा क्या? मतलब कि क्वेश्चन यस फॉर्मेशन सर। ऐसा ही होता है, हाँ बता सर। दो। हाँ मतलब ये यही तो बोल रहा हूँ। मतलब उस हाँ बंदे ने क्वेश्चन रीड किया और लॉजिकली एक ही सेट बैठ रहा है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल है नहीं। बताने का है? यस सर हाँ बता सर। दो। सर चलो चालू हो जाओ सर। क्या? बताओ ना। अरे मैं खुद को बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा वो Aladdin has two bags A and B with gems. Bag A has 6 rubies and 9 emeralds. 6 rubies and 9 emeralds. Bag B has 9 rubies and 15 emeralds. He takes out 1 gem from bag A and places into bag B. कुछ भी एक उठाया इधर डाल दिया। He takes out 1 gem from bag B and places into bag A. What is the probability that the ratio of rubies to emeralds in both the bags remains unaltered? ये कब हो सकता है कि रूबीज और एमराल्ड का रेशियो चेंज ना हो? सर जब सेम रूबीज ही अगर निकाला, ए से बी में रूबी गया तो बी से ए में वापस क्या आना चाहिए? रूबी ही आना Ruby. चाहिए। रूबी आना चाहिए। यस सर। ए से बी में रूबी गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/15। 6. 6/15। बी से ए में रूबी आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 9 by 9/24। भाई अभी अच्छा वो 10 अच्छा, रूबी की 1 रूबी बढ़ आई गया है। तो सॉरी. 10/25। या फिर 9 ए by से बी में एमराल्ड गया 9 by 15. 15। एंड बी से ए में वापस से 16 एमराल्ड by आया। 25. 16/25। हो जाएगा या करके बताऊं? नो हो जाएगा। सर अभी तो बैग भी. यस अच्छा सर। हाँ, ओके. अगेन का भी तो है ना, मतलब अगेन मतलब he again takes out 1 gem at random. मैडम ये ले लिया ना अगेन वाला केस। अच्छा, ओके. हाँ. करके बताऊं क्या?
बोल दो, नहीं। हो जाएगा ना? हाँ यस सर। सर। भाई इतनी देर में तो मैं कर देता, सोच सोच तो के मैं बोल। ट्राई कर रही हूँ, एक मिनट। अच्छा ठीक है, टाइम। तो कोई आंसर मैच 8 नहीं। by 125 आ रहा है। मैडम दिस इज 144 हाँ और 60 68 by 204, 120। 204 बाय 3 से हाँ, काटो। 68 by 120। अच्छा, ओ कर सॉरी, दिया मैडम मेरा? सॉरी सर, सॉरी। अरे मैडम इट्स ओके, आज तो एक ही बार सॉरी बोलो ओके सर। प्लीज। हटा दूं ना इसको? 65। 65 यस सर। लास्ट है वो। उसका आगम को डेटा बहुत मिसिंग खुशी है। होती है, आगम खुश हो जाता है अब लास्ट ही। अरे नहीं नहीं अब सर। उसका क्यों थे डेटा खुश? मिसिंग है सर। बताने का है किसी को? सर डेटा मिसिंग है ना। हाँ ये तो मेरे को देवित बता के भी नहीं कहते, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। डन। यस सर। क्या बात कर, हाँ सर, डन बहुत बढ़िया। फाइनली। So with this we are done with the discussion of FLT 12 AIMT 3.